इट इज अ डेस्परेट सिचुएशन आपके लिए. सो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, आपको हर चीज ट्राई करनी है एंड you just have to secure your seat. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Muskan Khanna and I'm a PhD researcher at the Department of African Studies, University of Delhi. I cleared JRF last year in my very first attempt, and in like 3 to 4 months I got myself admitted in a PhD program in my very first attempt. That as well happened. And इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ठीक है, हमने प्रपोजल बना लिया, but what's next? How do we defend that proposal? How do we prepare ourselves for the interview? So without further ado, let's straight away dive into this video. So first video, अगर आपने नहीं देखी, I will recommend आप जाकर पहले वो वीडियो देखें. उसके अंदर हमने टॉपिक सिलेक्शन एंड प्रपोजल रिलेटेड पूरा डिटेल में बात करी है. Once you have your proposal, what is the next step? So आई एम होपिंग कि आपने जब ये प्रपोजल बना लिया है, सो आपने अच्छे से लिटरेचर रिव्यू किया है, आप बहुत श्योर हैं उस टॉपिक के लिए, आपको अपना इंस्टिंक्ट पता है कि मैंने क्यों ये टॉपिक लिया है. यू नो दैट वन पर्टिकुलर रीजन, दैट व्हाई हैव आई पिक्ड दिस टॉपिक. अगर वो क्लियर है, वो डिफाइंड है, half of the battle is already won, because that will show your passion, that will show your motivation कि मुझे यही टॉपिक करना है, मुझे ये रिसर्च करनी है. बट थिंग्स आर नॉट दैट ईजी. अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ? Because the point is, maybe you are very passionate about your topic, maybe you are very well versed with your topic, but what if जो सामने बैठे हैं, they are not interested in that topic. So मेरा जो टॉपिक था वो बहुत कंटेम्प्रेरी, बहुत ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया एंड आई विल से समथिंग जो एक यूथ एंड यंग लोगों को अट्रैक्ट करेगा. So professors being senior experienced people and probably not that active on social media, I was at the back of my head, I was very worried कि they might not find my topic good enough, and that happened in few of the departments because वो relate नहीं कर पा रहे थे कि इससे आप कैसे डेटा निकालोगे, इससे आपका आपका प्राइमरी सोर्स होगा क्या, आप सोशल मीडिया पोस्ट ढूंढोगे. So these were the exact questions that were posed to me. तो ऐसी चीज़ें भी अपने दिमाग में क्लियर रखनी ज़रूरी है कि अगर हम कोई डिपार्टमेंट टारगेट कर रहे हैं जहाँ कोई ऐसा इंसान है ही नहीं हु विल बी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, तो आपके टॉपिक का रेलेवेंस वो सिर्फ आप तक ही रह जाएगा, वो कन्वे नहीं हो पाएगा. सो माइंडफुल होना कि अब जिस इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं, हमें उसे कैसे अपनी बात पुट अक्रॉस करनी है उस बंदे के सामने वाले के टॉपिक से लिंक करके. सो दैट इज हाउ आई अप्रोच्ड प्रोफेसर्स एज वेल. So the point is, you need to know the fact that applicants का नंबर बहुत ज़्यादा है when we talk about these central universities. सीट्स अगर 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, उस पर 300 350 बच्चे आते हैं. एनडीयू में तो इनफैक्ट 500 प्लस आए थे when we talk about political science department. In fact, in African studies also around 400 450 people, both अगर हम phases देख रहे हैं. तो ऐसे में what do you have to do to stand out? ये सिर्फ इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं करता, आपको आउटसाइड द इंटरव्यू भी बहुत चीज़ें आई विल रेकमेंड की करें आप, बट वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे और डिपार्टमेंट पे. एट टाइम्स अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ 2 स्कूल्स पर अप्लाई किया था एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर बोथ द स्कूल्स. One was, I think, human ecology related, and the other one was law and governance. And I personally reached out to the professors via mail, and they were so sweet. They responded instantly, and they even gave me an appointment that I can come meet and discuss my proposal with them. So ये step मैंने before interview किया था अपना proposal बनाने के बाद, because मुझे बाकियों से एक step ahead रहना था. Similarly, I did that for my own department at DU also, and I could discuss it with a few faculty members, जो कि मुझे help हुआ था because they already knew me. They knew that I was so passionate about my topic and this department कि मुझे घुसना ही है at any cost. So ये हर जगह relevant नहीं रहता. Like JNU में most of the schools professors do not meet before the, I reached out to one of those professors also, but उन्होंने clearly mention किया था that we are not allowed to meet. So you can do that on your personal level. अगर आप वहीं से MA कर रहे हैं या you have people who know professors, you can do that to show your interest. But ये depend करता है और सबके लिए अलग रहता है. But this was one thing that I did, personally reaching out. Then networking is also something. अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और उसी यूनिवर्सिटी से आप PhD करना चाह रहे हैं, you need to have good connections with your own professors.
आपको एक डिसेंसी, एक सिंसेरिटी उन्हें शो करनी है अपनी रिसर्च से रिलेटेड, तब जाकर ही वो शायद वाउच कर पाए। बिकॉज द पॉइंट इज प्रोफेसर्स के पास भी बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव देयर एमफिल स्कॉलर्स आल्सो, तो उनको वो भी लेने होते हैं। सो यू नीड टू बेसिकली इट इज अ डेस्परेट सिचुएशन आपके लिए। सो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, आपको हर चीज ट्राई करनी है, एंड यू जस्ट हैव टू सिक्योर योर सीट। सो वो किसी भी तरीके से हो, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट फैक्ट, दैट आपको रीच आउट करना पड़े, उनके इवेंट्स में जाना पड़े, यू हैव टू शो दैट यू वांट दिस डेस्परेटली। बिकॉज बहुत लोग हैं हु आर एक्चुअली गुड, मेरिट पे कोई आपके डाउट नहीं कर रहा, आप इतने मुश्किल एग्जाम्स क्लियर करके ही आ रहे हैं। आज की डेट में नेट निकालना, जेआरएफ निकालना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। सो नोबडी इज सेइंग दैट ये बंदा मेरिटोरियस नहीं है, इसका हो गया लेकिन ये मेरिटोरियस नहीं था, अब ये सीन नहीं होता। ऑल दैट मैटर्स इज किसने ज्यादा एफर्ट डाला है, हु हैज बीन मोर स्मार्टर इन देयर नीड टू बी एक्टिव। एंड आई नो सो मेनी ऑफ माई पीपल जिनका बिना पोलिटिकल नेक्सस, बिना कनेक्शंस, बिना नेटवर्किंग के भी हुआ है। सो ऑल यू नीड टू डू इज you have to get out. I was somebody जो बहुत shy, introvert kind of a person, student था during my masters. I had no connection with my professors and everything. So मुझे ये बात पता थी that यहाँ पर मेरे पास एक edge नहीं है. So I was clear कि नहीं, मुझे बाहर दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी सोचना पड़ेगा, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी देखना पड़ेगा. So I was smart enough to calculate the fact that my peers have better connections, my peers have better in terms of rapport with the professors. So you need to be very smart about that. And अगर आप एक आउटसाइडर हैं, you will have to take some time off. आपको आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा लोगों से, इवेंट्स अटेंड करने पड़ेंगे, एंड आपको अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा. अदरवाइज बहुत लोग हैं जो डीयू में घुसना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो जेएनयू में घुसना चाहते हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी. सो ये तो प्रपोजल की बातें सब पेरिफेरल लेवल पे है, डीप डाउन ये इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं करता है. सो यू नीड टू बी स्मार्ट अबाउट इट. Now, when we talk about preparing yourself for the interview, so I think if you've done your literature well, if you have good command on your topic, you will be good to go. कुछ लोग पूछते हैं लैंग्वेज का, हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते. सो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज जो होते हैं वो बायलिंगुअल हो जाते हैं, बट आई विल रिकमेंड या तो आप कंप्लीटली हिंदी में बात करें या कंप्लीटली इंग्लिश में करें. वो ब्रोकन लैंग्वेज दोनों ही साइड्स एक थोड़ा कन्वे नहीं कर पाता है बात. बाकी ऑब्वियसली ये थोड़ा स्पॉट ऑन चीज होती है, जैसा प्रोफेसर आपसे बात कर रहे हैं आप उसी तरीके से उनसे कन्वर्स करते हैं. सो जब हम इंटरव्यू प्रेपरेशन की बात करते हैं, आपके पास कुछ चीजें रेडी होनी चाहिए. सबसे पहले यू शुड हैव लाइक योर स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन रेडी, जिसके अंदर आप अपना बैकग्राउंड, अपने रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में बोल सकते हैं. अगर कोई स्पेसिफिक अच्छी पब्लिकेशन आपकी है या कुछ ऐसा एकेडमिक अचीवमेंट है, उसे जरूर मेंशन करिए, बट बी वेल थरो विद इट. ये नहीं उस पर क्वेश्चन पूछे और आपको याद ही नहीं है, बस बोल दिया आपने. अगर मौका मिले, जनरली इंट्रोडक्शन का मौका नहीं मिलता है बिकॉज इतने एप्लीकेंट्स है, 2-2 3-3 मिनट में इंटरव्यूज वाइंड अप हो जाते हैं. सो बी थरो विद लाइक एन इंट्रोडक्शन. अब मेरे घुसते ही वो सीधा पूछते रिसर्च प्रॉब्लम बताओ, व्हाट्स योर रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट्स योर हाइपोथेसिस. सो आपको ये चीजें क्रैम्ड अप, मग्ड अप होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए. आपका टाइटल, आपका रिसर्च प्रॉब्लम, आपकी की थिंकर्स, आपका मेथोडोलॉजी. आई मीन यू नीड टू एक्चुअली क्रैम इट अप, क्योंकि इंटरव्यू में अगर टाइम कम है वो सीधा ये पूछते हैं. देन अदर देन दैट ऑब्वियसली आपको अपने की स्कॉलर्स अच्छे से पढ़े होने चाहिए, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, एंड कुछ अगर करंट रेलेवेंस है या उस डिपार्टमेंट ने कुछ वैसा किया है, किसी प्रोफेसर का कोई बैकग्राउंड रहा है उसमें, तो वो वहां से क्वेश्चन पिक कर सकता है. एंड कुछ पेरिफेरल टॉपिक्स भी, इफ योर टॉपिक इज अराउंड कास्ट, रिलीजन, थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपने कुछ रिलेटेड टॉपिक वैसा लिया है. सो अदर देन योर इंट्रोडक्शन, यू नीड टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद योर प्रपोजल. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. सो what you can do is, मैंने क्या किया था, AI का यूज करके I just posted my topic, my title, my questions, and मैंने कहा था just form 100 questions out of this. So हर तरीके से, हर एंगल से मैंने questions निकाल लिए थे, and I was prepared with like, अच्छा कुछ भी पूछे मेरे टॉपिक के अराउंड तो मैं रेडी रहूंगी. So other than this, obviously अगर किसी आप पर्टिकुलर एरिया स्टडीज डिपार्टमेंट में कर रहे हो तो उस एरिया की थोड़ा जीके पढ़ के चाहिए, वो रैंडम क्वेश्चंस वहां से भी पूछ सकते हैं. So this is majorly about how do you deal with your proposal and interview process. In the coming videos I will in detail talk about मेरा ड्यू का कैसा experience रहा था, and next video will talk about my JNU experience because I got
interview calls from around 5 departments in JNU. So, how was that experience? Along with my private Ambedkar University experience, I'll share that with you. Till then, I hope these 2 videos are helpful to at least start with your research proposal journey. And I'll see you in the next video. Bye. Take care.